Once again to my channel SSB Let's Get Recommend myself Swapnil. This time I'm bringing something unique topic which is COVID. We all are aware about COVID that it has been since 2020, but this time I'm picking something unique thing. The thing which I have picked is what is the difference between COVID vaccine and Covaxin, why there is an impact in the lungs, and what is the difference if we get vaccinated and if we does not. So that is one of the difference. Then how the oxygen is made, how it is generated, that is a second topic. And third, since India has 69 industries to manufacture oxygen plants, still we are having a drastic impact with decline on oxygen supply. Why is that? So I'll be covering all this topic which is related to SSB. So when you have an interview, definitely the interviewer will ask that what's your point of view, and you must be clear on the point that what is going on around the India and across the globe, and how we are minimizing the impact. So without wasting any time, let's. So, with a brief of it, COVID-19. COVID is an infectious which severe acute respiratory syndrome. So, as it is said, it's a respiratory problem. Okay, we are all aware that. What are the possible modes of transmission? Just give me a moment. Okay, modes of transmission is the respiratory secretion or respiratory droplets, expel infected person sneeze. मतलब जो droplets होती हैं उसकी वजह से वो चीज़ फैलती है. It is inborn. वो वहाँ से एयरबॉर्न हो जाती है, नॉट इनबॉर्न, आई एम सो सॉरी, बट इट इज़ एयरबॉर्न. तो वो जब आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट या किसी के क्लोज कॉन्टैक्ट में आते हैं तो वो आपके थ्रू नोज या माउथ इनहेल हो जाती है, एंड इट डायरेक्टली इम्पैक्ट. Why oxygen is needed for COVID patient? Since it is clearly said that it is a respiratory syndrome, so definitely it will impact our lungs, correct? So oxygen is the crucial treatment for many patient. तो अब जब वो लंग्स को इम्पैक्ट करेगा, आपकी ब्रोंकाइल्स को इम्पैक्ट करेगा, तो सक्शन जो ऑक्सीजन का होगा वो कम हो जाएगा. सो resulting in lack of oxygen. That is why we require oxygen for COVID patient when the symptom is in a severe condition. तो symptoms होते हैं हमारी शॉर्ट ब्रेथनेस हो जाती है, एंड फॉलोड बाय, अगर ज़्यादा इम्पैक्ट हो जाएगा, ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो निमोनिया होने की पॉसिबिलिटी है. तो बेसिकली अगर आपकी किसी को कोविड होता है तो वो ब्रोंकाइल्स में चिपक जाता है, तो जो आपकी सक्शन की पावर होती है तो वो कम हो जाती है, करेक्ट? देन from in 2020 we have made two vaccine. One is Covaxin and second Covaxin, and second is the Covishield. Covishield is built by AstraZeneca, Oxford AstraZeneca, and manufactured by Serum Institute of India. ठीक है, they have a formula जो बाहर से आया. Covaxin which is indigenously developed, तो हमारी है. रिसेंटली भी हमारे पास स्पुतनिक भी आ चुकी है, एंड हमारे पास सप्लाई भी है. स्पुतनिक इज फ्रॉम रशिया, सो वो भी सप्लाई हो चुकी है टू इंडिया. एंड इट इज़ सेड जैसे कोवैक्सीन और कोविशील्ड की दो दो डोजेस चाहिए हम लोग को. इट इज़ सेड दैट स्पुतनिक की कुल एक वैक्सीन चाहिए. इट इज़ सफिशिएंट इनफ, एंड इट इज़ स्टिल ऑन टेस्टिंग, नॉट टेस्टिंग बट हमें अब लगेगी वो, ऑलरेडी सप्लाइड फ्रॉम रशिया. सो बेसिक डिफरेंस इज कोवैक्सीन जो डेवलप है इज फ्रॉम जो उसका डेवलपर है दैट इज हैदराबाद बेस्ड भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड. ये कोवैक्सीन बनाया है, ठीक है. एंड कोविशील्ड इज एज आई सेड ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका एंड मैन्युफैक्चर्ड बाय सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया. देन कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड में मेजर डिफरेंस क्या है? अभी कोवैक्सीन क्या है जो इंडिजीनियसली डेवलप्ड है, वो हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने करा है इसमें, हम लोगों ने ट्राई टू टेस्टेड इन अ डेड वायरस. अभी हम डेड वायरस जो है हम उसको अपनी बॉडी पे भेजते हैं, एंड देन दे कंटेन इनएक्टिवेटेड वायरस विच कैन नॉट इन्फेक्ट अ पर्सन बट स्टिल कैन टीच द इम्यून सिस्टम. बेसिकली हमने क्या किया, हमने डेड वायरस भेज दिया अपनी बॉडी में, सेइंग दैट कि जो आपका इम्यून सिस्टम है टू बूस्ट इट, कि भैया डेड वायरस है, आप इससे फाइट करो, आप नेक्स्ट आप बाकी वायरस से भी फाइट कर लोगे, करेक्ट? तो एक डेड वायरस, अभी ये वीकन वायरस भेज दिया उन लोगों ने हमारी बॉडी में.
कि हमारी जो इम्यून सिस्टम है वो उससे फाइट कर ले, और जब वो उससे फाइट कर लेगा तो वो बाकी जो आपके वायरस होगा, कोविड का एक्टिव वायरस होगा, वो अपने आप ही उससे भी फाइट कर लेगा, एंड देन इट इज़ ऑलरेडी योर इट इज़ क्योर्ड। ठीक है, तो ये आती है कोवैक्सीन का। अब कोविशील्ड का डिफरेंस क्या है? कोविशील्ड बोलती है कि हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने टेस्टिंग करी थी टू, अभी हम लोगों ने एक सेल में हमने एक छोटा सा स्पाइक प्रोटीन हमने भेज दिया, ठीक है, into a human body capable of infecting the receiver but can very well teach the immune system। काम सही है, यहाँ पर हमने डेड वायरस भेजा है, यहाँ पर हमने एक्टिव वायरस भेजा है कि भैया अब उसमें एक प्रोटीन स्पाइक लगा दिया, वो आपके इम्पैक्ट नहीं करेगा आपकी बॉडी को, बट वो आपको बताएगा कि फाइट करना है, आपकी इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप करेगा। सी सिंस हम लोग जब वॉर क्राई करते हैं तो वी गेट बूस्ट, वी गेट मोराल, हमारी मोराल और बूस्टअप हो जाती है, दैट येस वी कैन डू इट। सिमिलरली हम लोगों ने कोविड वैक्सीन भेजी, हमने इम्यून सिस्टम को बोला बूस्टअप, मोटिवेट किया, और वो इम्यून सिस्टम को एक्टिव जैसे ही करता है वो फाइट करने लग जाता है। सो दैट इज़ अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज टू एंड हाउ द वैक्सीन वर्क्स। अभी मैंने किसी डॉक्टर से कनेक्ट किया था, देन आई गेट टू नो कि बेसिकली अगर मुझे कोविड वैक्सीन लग जाता है एंड कोविड वैक्सीन नहीं लगता है तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दैट। ये जो आप फोटोग्राफ देख रहे हो ये एक पेशेंट की है जिसको कोविड, दोनों को कोविड हो रखा है, करेक्ट, बट इसको कोविड वैक्सीन नहीं लग रखी है और इसको वैक्सीन लग रखी है। नाउ यू कैन सी ये जो पिक्चर है ये है लंग्स की, ठीक है, आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर कोविड ने इम्पैक्ट दिया है, करेक्ट, यहाँ पर इम्पैक्ट आया है, बट जब हम यहाँ देखते हैं तो कोविड के जो वायरस है उसने कितना इम्पैक्ट दिया है। सो दैट इज़ अ मेजर डिफरेंस। वो इम्पैक्ट करेगा, वो आपकी बॉडी पे आएगा, बट वो इतना आपको इफेक्ट नहीं करेगा क्योंकि आपकी वैक्सीन जो है वो उसको एक्टिव नहीं होने देगी, उसको ढंग से ज़्यादा फैलने नहीं देगी। तो दैट्स अ बेसिक डिफरेंस एंड अ मेजर डिफरेंस व्हाई वी नीड टू गेट अ सेल्फ वैक्सीनेटेड। पॉसिबिलिटी कि वैक्सीन के बाद हो जाएगा, हो भी सकता है कोविड, बट वो इतना इम्पैक्ट नहीं करेगा जितना बिना कोविड वैक्सीन के होगा। सो ये आपका एक लंग्स की फोटोग्राफ है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस दैट हम वैक्सीन लगवाएं, ठीक है। देन एज आई सेड दैट आई विल बी कवरिंग ऑक्सीजन वाइट इज, ये अभी मैंने बेसिक कवर कर लिया, सो दैट वी आर वेल अवेयर कि कोविड क्या होता है, वैक्सीन हम क्यों यूज़ कर रही है, बेसिक डिफरेंस एंड पिक्चर। यूज़ करते हैं दैट हाउ ऑक्सीजन इज प्रिपेयर्ड एंड व्हाट आर द यूजेज ऑफ इट। अभी हम लोग इतना बोल रहे हैं कि अभी हम लोगों ने ये तो जान लिया, हमें एक साल से हम पढ़ रहे हैं कि कोविड हो गया, कोविड के बारे में भी सबने देख लिया, mRNA देख लिया, वायरल वेक्टर देख लिया, सब कुछ देख लिया। अभी हमें शॉर्टेज पड़ गई ऑक्सीजन की। अब बेसिकली ऑक्सीजन की शॉर्टेज तो पड़ गई, ठीक है, बट ये बनता कैसे, दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। हमारा बेसिक क्या होता है कि हमारी जो एयर है, ठीक है, हमारी एयर है, हमने उसको एयर फिल्टर करी, जो भी डस्ट पार्टिकल होगा, जो भी डस्ट पार्टिकल्स होंगे वो यहाँ से एयर फिल्टर होंगे और यहाँ से एयर वापस इधर को आ जाएगी, इट इज़ देन प्रेस्ड। अभी जैसे ये कंप्रेसर पे आता है, कंप्रेसर में क्या आता है, यहाँ से एक पिस्टन आता है, यहाँ से इस गैस को वो कंप्रेस करता है, ठीक है। कंप्रेस जैसे ही करता है वो हीट अप होने लग जाती है। आपको पता होगा जैसे ही आप हाइड्रोलिक सिस्टम, पता है आप लोग को हाइड्रोलिक सिस्टम, इट इज़ द सेम फिनोमेना कि पिस्टन से जैसी वो कम होती है उसको यहाँ पर इनलेट दिखा और वो सारी गैस यहाँ से निकल गई, अब वो वार्म एयर होगी। अब ये नॉर्मल टेम्परेचर थी, अब ये वार्म एयर, क्योंकि उसको कंप्रेस कर चुके हैं हम लोग। अभी जैसे ही वो कंप्रेस करा हमने तो यहाँ से ये पास हुई और ये है हमारा नाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन, ये हमारा होता है फ्रीजिंग पॉइंट। बेसिकली ये काम करता है, ये जो हमारी वार्म एयर थी इसको बिल्कुल ठंडा कर देता है, ठंडा। अब ठंडा इसलिए करता है सो दैट सेग्रीगेशन कैन बी डन विथ दैट हेल्प। अब जैसे ही ये इस प्रोसेस से लिक्विड नाइट्रोजन से जाती है, ठीक है, लिक्विड नाइट्रोजन से जाने के बाद ये आगे जाती है, देन इट गोज टू अ सेपरेटर, करेक्ट। सेपरेटर में क्या होता है, सेपरेटर में जो भी आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है, सिंस वी आर अवेयर दैट वेरी वेल अवेयर दैट जो हमारी एटमॉस्फेयर है उसमें नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है एंड अदर गैसेस भी है, करेक्ट।
सो ये सेपरेटर पे जाती है, ऑक्सीजन यहाँ पर आती है और कार्बन डाइऑक्साइड एज ए ड्राई एस यहाँ से निकाल देते हैं हम लोग। तो अब जो लेफ्ट ओवर बचता है वो हमारा कुल बचती है ऑक्सीजन, करेक्ट। अभी यहाँ पर जो ये है मेरी, ये सॉरी जो ये है मेरा जो पाइपलाइन है, दिस इज CO2 फ्री, ये प्योर ऑक्सीजन है। अब हमने इसको भेजा एक लिक्विफाइड एयर में। लिक्विफाइड क्यों किया हमने? एक्सपेंशन टर्बाइन में की, जिससे भी हम ये अभी ये एयर में पूरा काम हो रहा है, ठीक है। अभी हम इसको लिक्विफाई करेंगे कि ये सारा हम कंटेनर में तो भेजेंगे, तभी तो बोलते हैं लिक्विफाइड गैस, तभी वो इस गैस में जाती है। यहाँ पर ये चली गई लिक्विफाई होने के लिए। अभी इसको हमने थोड़ी सी का टेम्परेचर यहाँ पर डाउन हो चुका है, ठीक है। अब हमने इसको क्या किया, यहाँ पर हमने इसको थोड़ी सी गर्म किया, एयर डिस्टिलेशन कॉलम। हम लोगों ने सारी चीज़ें ये हमने अपने केमिस्ट्री में पढ़ी होगी कि एयर डिस्टिलेशन सिस्टम क्या होता है। सो बेसिकली हमने जब इसको गर्म किया तो जो ऑक्सीजन जो हमारा लास्ट में आया था, ठीक है, हमने कार्बन डाइऑक्साइड तो निकाल दी, बट उसमें फिर भी है नाइट्रोजन है जो 78% होती है, आर्गन है, ऑक्सीजन है एंड कार्बन डाइऑक्साइड हमने निकाल दी है एंड मेनी मोर अदर्स। तो नाइट्रोजन हम जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, उसका टेम्परेचर का हीट अप करते हैं, तो जो नाइट्रोजन होती है वो ऊपर रह जाती है, आर्गन सेंटर में रह जाती है एंड लिक्विड ऑक्सीजन विच इज़ इन 185 सेंटीग्रेड वो नीचे रह जाती है। अब आप सोच रहे होंगे माइनस में है तो ये ऐसे कैसे डिफ्रेंशिएट हो पा रही बॉस? एक्चुअली में ये है कि जो 196 है दैट इज़ लोएस्ट और 185 इज़ द हाइस्ट। मैं 185 और -2 में डिफरेंस है, तो जैसे जैसे मैं आते रहूँगा आगे वो ज़्यादा होता है। हम प्लस में क्या होता है 1 2 3 वो इंक्रीज होता है, बट माइनस में वो डिक्रीज होता है। तो ये इसमें मेजर डिफरेंस हो गया, ठीक है। नाइट्रोजन अब जब ऑक्सीजन प्लांट लग गया, ठीक है, तो अब ये जो तीनों चीज़ें हमारी तीनों गैसेस निकल रही हैं, इनके बेनिफिट क्या है? नाइट्रोजन आपकी यूरिया में काम आ जाता है जो हम खेती बाड़ी में यूज़ करते हैं, एग्रीकल्चर में। आर्गन जो होता है दैट इज़ वन ऑफ द नोबल गैस, वो हम यूज़ करते हैं वेल्डिंग पर्पज़ के लिए, ये हमारी इंडस्ट्रीज़ में काम आ जाता है। एंड ऑक्सीजन अभी हमें काम कर रहा है एंड इसके अलावा हम लोग यूज़ करते हैं वेंटिलेटर्स में, हमारे नॉर्मल मेडिकल। ये तो आज हमें पता लग पा रहा है इसलिए हम आज पढ़ रहे हैं, वरना बेसिकली ये बहुत पहले से था, ऑक्सीजन पहले भी सप्लाई होती थी और ये हम लोगों ने आज देखा है। तो ये पहले भी हॉस्पिटल में यूज़ होता था। सो दिस इज़ अ बेसिक प्रोसेस दैट हाउ ऑक्सीजन इज़ प्रिपेयर्ड, ठीक है। एंड व्हाट आर द यूजेज? तो यूजेज में 3 चीज़ें निकल जाती, नाइट्रोजन, आर्गन एंड देन अभी दिस इज प्रीटी इंटरेस्टिंग दैट हमारे पास टोटल 69 स्टेट्स हैं जहां ऑक्सीजन मैन्युफैक्चर होती है, बट इट इज़ प्रीटी इंपॉर्टेंट कि हम वो अंडरस्टैंड करें वो है कहाँ पर। वो सारे के सारे साउथ में, देयर कोई ऐसा ऑक्सीजन प्लांट नहीं है जो नॉर्थ में हो, अगर होंगे भी तो 1-2 निकलेंगे, बट मैक्सिमम आउट ऑफ 69 80% सारे साउथ में है। दैट्स वाई देयर इज शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन इन नॉर्थ इंडिया, इसी वजह से, दैट इज द ओनली रीजन, ठीक है। हम जो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाई देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन इन इंडिया, दैट इज वन ऑफ द रीजन कि हमारा सारी चीज़ें साउथ में है। अभी हम बोलते हैं कि भैया साउथ में होने के बाद तो दूर कितना है, बट बॉस साउथ से लेकर आने में और नॉर्थ में लेकर आने में टाइम लगता है। सो अब जब एक तमिलनाडु से TN से हमारे पास दिल्ली में वो जो ट्रेन सप्लाई कर रही है, तो इट विल टेक एटलीस्ट 2 to 3 days, 2 दिन तो मिनिमम लेगा टू ट्रांसपोर्ट दैट। ऑक्सीजन फिल होगी, वहाँ से डिस्पैच होगी, तो पूरे प्रोसेस में 2 दिन लग जाता है। दैट इज़ वाई देयर इज़ अ लैक ऑफ ऑक्सीजन इन नॉर्थ इंडिया। सो रीज़न क्या है? सबसे पहला है ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, जो हमें इतना टाइम लग रहा है ट्रांसपोर्ट करने में। देन सेकेंड पॉइंट इज द इंक्रीज ऑफ सप्लाई। अभी कुछ चीज़ हमारे पास इन्फ्लेशन हमने पढ़ा है, जो हमारी पहले चीज़ X प्राइस में थी वो आज Y प्राइस में बिक रही है, बिकॉज क्योंकि उसका यूजेज ज़्यादा बढ़ चुका है। आज ऑक्सीजन की डिमांड इतनी है कि उसको लोग यूज़ करने वाले इतने सारे ज़्यादा हो गए कि उसकी प्रोडक्शन बढ़ानी पड़ रही है और हमें नए प्लांट डालने पड़ रहे हैं क्योंकि यूजेज ज़्यादा हो गई है। तो इंक्रीज ऑफ सप्लाई बढ़ चुकी है, तो यूजेज ज़्यादा बढ़ चुकी है,
तो एक ये रीज़न हो गया, सेकेंड रीज़न। थर्ड रीज़न है डिलीवरी टाइमलाइन। अब और जब वो 2-3 दिन ले रहा है तो उसका मतलब वो बंदे के पास पहुंचते पहुंचते उसको एक दिन तो और चाहिए, तो चौथे दिन वो पहुंचेगा, 2 दिन उसको वहां पहुंचने में लगा, एक दिन आधे दिन उतारने में लगा, और फिर उसको जहां उसकी डिफाइंड लोकेशन थी वहां पर उसको भेजने में आधा दिन या एक दिन पूरा लग जाता है। तो डिलीवरी, इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर विच इज़ इम्पैक्टिंग द शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इतने पैनिक हो चुके हैं कि हम लोग स्टॉक कर रहे हैं चीज़ें। अभी किसी के पास 4-5 सिलेंडर है तो कह रहा है कि उसको चाहे ज़रूरत हो ना हो, उसकी एक में काम चल रहा है, बट कोई कहता है चारों भर लो, पांचों भर लो। भैया क्यों ओवर स्टॉक कर रहे हो? अपने पास जितना रिक्वायर्ड है उतना रखो। वो 4 सिलेंडर किसी और के लिए यूज़ हो सकते हैं, दैट इज़ वन ऑफ द बेनिफिट थिंग। किसी और यूज़ कर सकते हैं, वो 4 से 4 जाने भी बच सकती है, 4 बंदे भी यूज़ कर सकते हैं, करेक्ट। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप उतना यूज़ करो जितना आपका रिक्वायर्ड, आप स्टॉक मत करो चीज़ें। देन प्रॉपर फैसिलिटेशन, मतलब कोई उसको देखभाल नहीं कर रहा कि चीज़ें आ कैसी रही हो। तो आज हम इतने इंडिया ने इतना हाईलाइट हो चुकी है चीज़, इसलिए हम लोग देख रहे हैं कि भैया यहाँ पर ये चीज़ इम्पैक्ट है, उसको ऐसे ध्यान देना है। तब पहले कोई प्रॉपर फैसिलिटेशन नहीं था, करेक्ट। एंड एज आई सेड यूजेज हैज़ इंक्रीज, डिलीवरी टाइमलाइन बढ़ गई क्योंकि हमारी इतना यूजेज हो चुका है। अभी आप लोग हम लोग न्यूज़ में देख रहे होंगे कि कितना यूजेज हो चुका है। अब हर एक बंदा अपना सिलेंडर लेके बाहर खड़ा हुआ है, क्या रिफिल करने के लिए, गाड़ी में बैठे हुए, टैक्सी में बैठे हुए, और इवन ई रिक्शा में बैठे हुए। सो यूजेज बढ़ चुकी है। अभी सीइंग ऑल दिस, व्हाट शुड बी इंडियाज लॉन्ग टर्म प्लान? हम लोग को क्या सोचना चाहिए? हम लोग को ये देखना है कि आज तो हम कर लेंगे, बाहर से हमने यूएस से, रशिया से, जर्मनी, सिंगापुर, यहाँ से हमने सबने हेल्प कर दी, ऑक्सीजन आ गया, मेडिकल किट आ गया, वैक्सीन आ गया, सब कुछ आ गया। बट व्हाट इज़ अ लॉन्ग टर्म प्लान? इंडिया शुड थिंक अबाउट द लॉन्ग टर्म प्लान। बट एज पर माई पॉइंट ऑफ व्यू, अगर हम सोचें तो हमें ये देखना है कि हम लोगों को ऑक्सीजन का जो प्रोडक्शन है, इट शुड बी शिफ्टेड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ एज वेल। हमें एक ऐसे प्लांट बनाने पड़ेंगे हर स्टेट में, या मिड ऑफ द स्टेट में, या मिड ऑफ द रीजन में, कि सप्लाई सबको पहुंचे। चाहे आप एक बनाओ बट सबको बचाओ, करेक्ट। तो ऐसे हमें स्पेस ढूंढने पड़ेंगे नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट में, कि वो चीज़ें, सारी चीज़ें कवर हो जाए। दिस इज़ अ लॉन्ग टर्म प्लान विच आई थिंक दैट शुड बी ऑप्टेड। हमारे पास 69 स्टेट्स में जहाँ प्रोडक्शन हो रहा है, स्टिल देयर इज़ अ लैक। आई गेस दैट्स द ओनली रीज़न जो मैंने अभी तक पूरा पढ़ा है, जो मैंने एनालाइज किया है, जो पढ़ा, दिस इज़ द रीज़न वेयर वी लैक। सो गाइस, this is all about COVID and how the oxygen is made, what are the applications, and why it is important, and why there is a shortage of oxygen in India, and most important difference between कि एक कोविड वैक्सीन जो लगा रहा है, कोविड वैक्सीन जो नहीं लगा रहा है, उनका डिफरेंस क्या है। सो guys, thank you so much. I hope everyone is safe and secure at their place. The only precaution that has to be taken is use mask, sanitize your hand, and keep social distance. That is 3 important factor which makes you and keeps you safe from COVID. Thank you once again. Jai Hind, Jai Bharat.